शुरू के 5-6 मिनट के अंदर जो है ज्वाइन कर लिया करें, उससे ज्यादा लेट ना हो, ठीक है? सभी को बोल रहा हूँ, है ना? यस सर, बट मेरा जो अल्फाबेट है वो यू है, तो वो लास्ट हो जाता है अटेंडेंस लेते लेते। ये इस बारे में हम फैकल्टी से बात कर लेंगे कि अपने टाइम के अंदर ही अटेंडेंस ले सारे लोग। ठीक है सर। Okay, so what we have learned in our last class, क्या आपने जो 50 मिनट एक सेशन को सुना, उससे क्या आउटकम आपको समझ में आया? Organizational behavior is a systematic study of action and attitude of people within an organization. Okay. A study Anything of else? human behavior in an organization. Study of human behavior in an organization. Anything else? Sir, it gives insight on how employees perform and behave in organization. Okay. Any other thing? Good morning, sir. What the challenges they face in the organization? Functioning behavior. Yes. So, what the challenges they face in the organization? Okay. Okay. See, before starting to the psychological aspects of this unit 1, every subject is having some logic. Okay, so we will discuss on what logic this subject is based. ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये किस लॉजिक पर बेस्ड है, इस चीज को हमें समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है. Then we will proceed to today's topic, that is individual behavior, or at what levels we study behavior of individuals and groups in an organization. See, in my previous slide, we have gone through a slide where I have shown you the ages of growth, the ages of civilization. कुछ याद आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Gatherers. Yes, sir. Yes, yes. ठीक है. Yes, sir. तो ये जो एजेस ऑफ सिविलाइजेशन है, आप सारे लोग जो क्लास में है, डू यू एग्री विद दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is how we have grown. This is how we have seen development, है ना? Now, see, what is the basic change in the behavior which can be easily seen in this developmental phase? What was the behavior of hunters and gatherers? To hunt down the animals and to fulfill their needs, hunger. हाँ, they were aggressive. ठीक है. The entire their life was based on hunting and gathering. ठीक है. For owing something, they can kill anybody. This was or we can say that the physical strength was more of importance than of the mental strength. The person who was physically more sound was the survivor. ठीक है. And gradually the change which can be seen was there was a development of intellect. ठीक है. We can see this particular intellectual abilities development in the next phases of the growth of civilization. The agrarian society, what they started doing? Agriculture. They started cultivating. Okay, है ना? They started thinking of how to cultivate, how to grow crops. ठीक है. In the next society, the industrial society, what happened? They started like cottage industries and all. Cottage industries. Industrialization. Some sort of scientific know-how developed. Some sort of scientific know-how developed, and the pace of industrialization
grown in this last century, 1900 से 2000 तक का जो ये 100 years का समय है, इसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा। जो नेशंस अंडर डेवलप्ड थे या जो नेशंस इकोनॉमिकली साउंड थे, वहां पर तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज हैं वो हुए। ठीक है, इस डेवलपमेंट से जो हमारा चीजों को देखने का नजरिया था वो काफी साइंटिफिक हो गया। ठीक है, इसके ऊपर का जो एज है, जो पिछले 20-25 साल से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है एनवायरनमेंट को, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वर्क। ठीक है, दैट इज इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डूइंग इन managing organization. For example, you go to any XYZ organization, you will find that there is a IT platform which is supporting the entire business philosophy of that organization. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इस फ्रेमवर्क को हम देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि हर जगह पर इंसान के जो मेंटल लेवल में एक कंसिडरेबल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो मोबाइल फोन जो मेरे फादर के पास 55 के एज पे आया, वो मोबाइल फोन मेरे पास जो है 18 इयर्स एज पे आया, वो मोबाइल फोन मेरी बेटी के पास जो है वो 2 साल की उम्र में पहुंच गया है, और वो भी उतने ही अच्छे से ऑपरेट कर पा रही है जितना कि मेरे फादर 55 के एज में उसको ऑपरेट करना सीख रहे थे। दैट मीन्स देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन आवर मेंटल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो क्या है पता है? हमारे इंटेलेक्ट के साथ हमारा ईगो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, एक हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि वी नो समथिंग, है ना। अब ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को आप हायर करते हो एनवायरनमेंट से, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो फिजिकली साउंड होते हैं, जिनकी मेंटल एबिलिटीज जो है वो बेहतर होती है। तो जितने आप अच्छे इंटेलेक्ट को हायर करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, उतने तरीके के जो ईगो है आप उनको भी एक कोलैटरल एसेट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में ले लेते हो। सबका दिमाग अपने अपने तरीके से चलता है ना। ठीक है, तो आज के ऑर्गेनाइजेशन में जब हम पूरे दुनिया भर से सबसे अच्छे लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, जो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैनेज करना टफ है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जैसे जैसे हमारे नॉलेज में एक बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, हमको कोई भी कुछ भी काम बोल दे तो क्या हम कर लेंगे? No, sir. हमने कई जगह पर ये स्टेटमेंट पढ़ा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की शुरुआत हुई तो ह्यूमन बीइंग्स वेयर ट्रीटेड एज कॉग ऑफ मशीन्स। ठीक है, इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए क्यों इंसान तैयार था? क्योंकि कोई साइंटिफिक नो हाउ, कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीजें की अवेलेबिलिटी नहीं थी। आदमी काम करके ही सीखता था। ट्रेनिंग वाज बेसिकली ऑन जॉब। आप जिस काम को करने जाते थे उसी काम को वहां पर सीखते थे। तो डरा के धमका के लीडरशिप जो है वो मैनेज किया जा सकता था। ठीक है, बट क्या आज हम जिनको हायर करते हैं वो अनपढ़ हैं? No, sir. No, They are sir. educated. No, sir. They are educated. They are educated. They are educated. We have to think 10 times before giving a statement, because every individual will analyze the statement according to his knowledge level. ठीक है, और जितना बेहतर ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता जाता है, उनको मैनेज करना उतना ही टफ होता जाता है। ठीक है, जितना बेहतर ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता जाता है, आपको उनको मैनेज करना उतना टफ होता जाता है। क्यों? वी हैव टू मैनेज। देखो, we all are very lucky that we are citizens of a country where we respect diversity. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक ऐसे देश में हुआ है जहां पर कई धर्म, कई संप्रदाय, कई कल्चर, कई रिलीजन, कई तरीके के ज्योग्राफिकल एरियाज हमको एक ही देश के अंदर रह करके देखने को मिल गया। ठीक है, वी रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी।
हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बचपन से ही सीखते हैं, ठीक है। लेकिन थिंक अबाउट दोज कंट्रीज जहां पर एक ही धर्म, एक ही संप्रदाय, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, ठीक है, प्रैक्टिस में हो रहा है। वो भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको दे सकता है। बट डूइंग बिजनेस देयर, हायरिंग पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन, मैनेजिंग देम इन आवर ओन बिजनेस इज अ वेरी टफ टास्क, ठीक है। एंड देयर आर कंट्रीज, ठीक है, द कंट्रीज लाइक रशिया, कंट्रीज लाइक चाइना, ठीक है, countries like this Japan, they are dominated. They promote their own culture, they promote their own language, they promote their own way of living and doing business. They are making them understand about something, ठीक है, there is a different culture in the European countries, ठीक है, making them understand the philosophy of business, ठीक है, managing them to work with us will be a very tough task for a manager in near future also. जितना दिन बढ़ता जाएगा ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना उतना ही ज्यादा टफ होता जाएगा। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजरियल पोजीशन है, कितना भी ऑटोमेशन हो जाए, ठीक है, कितना भी ऑटोमेशन हो जाए, there will be a need of positive leadership to manage the organization. जब तक ये पॉजिटिव लीडरशिप नहीं होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं किया जा सकता। जब तक एक ऐसा लीडरशिप जो अपने फॉलोअर्स की भावनाओं का ध्यान रखकर, ठीक है, जो लीड करने का स्ट्रैटेजी ना तैयार कर सके, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर नहीं कर सकता, वो लीडर जो है प्रॉस्पर नहीं कर सकता। अब वो समय चला गया जब आप छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मिलकर के बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में सोच सकते थे। ये कब पॉसिबल था बेटा? जब जो एम्प्लॉयर है वो कस्टोडियन होता था, ठीक है। कस्टोडियन का मतलब जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सारी जो परेशानियां है ना वो अपने ऊपर ले लेता था। फॉर एग्जाम्पल थिंक भिलाई 70 years ago, आज 2020 है, 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू ने भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट की नींव रखी तो भिलाई जो है वो पूरा एक खेत था, जंगल था, ठीक है। लोग भिलाई स्टील प्लांट में काम करने आना नहीं चाहते थे, पैसा जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। ये क्लियरिटी ही लोगों के दिमाग में नहीं थी कि हम जाएंगे तो हमारी जान चली जाएगी, बिकॉज द वे ऑफ वर्किंग इन स्टील प्लांट वाज वेरी हैजार्डियस। ये लोगों के दिमाग में था। व्हाट भिलाई डिड, भिलाई ने पूरा शहर बसाया, प्लेग्राउंड बनाए, हॉस्पिटल बनाया, कम्युनिटी हॉल्स बनाए, पार्क्स बनाए, गार्डन बनाए, एक अच्छा रिहायशी एरिया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिया ताकि लोग जॉब करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट को चूज करे, ठीक है। इतना पैसा भिलाई ने, जो कि जरूरत नहीं थी एम्प्लॉयज के पीछे खर्च करने का, इसीलिए खर्च किया उस पर्टिकुलर समय में जो एम्प्लॉयमेंट का तरीका होता था वो एक कस्टोडियन मॉडल पर बेस्ड होता था कि जो एम्प्लॉयर है वो कस्टोडियन के रूप में काम करता था। भाई आप हमारे यहाँ नौकरी ज्वाइन कर लो, आपका पूरा जो भार है, आपकी फैमिली का पूरा जो भार है वो ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा। What IT companies do today? IT companies they don't behave as custodian, ठीक है। आपको नगद पैसा दे दिया, भैया ये 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, ये 1.5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, आप अपने परिवार को कहाँ रखोगे आप देखो, परिवार का ट्रीटमेंट कहाँ पे कराओगे, उसके लिए आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरो। वी आर नॉट एंगेज्ड विथ योर इश्यूज, ठीक है। तो जो स्वरूप है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के, उसमें भी 50, 60, 70 सालों में बहुत चेंज आया है। और ये चेंज इसीलिए बिकॉज ना तो अब जगह है इस तरीके के कस्टोडियन पैटर्न के ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने का, पहली चीज, और ना ही इस कंपटीशन के एज में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास इतना पैसा है कि वो एक्स्ट्रा में खर्च करें कि मतलब जो एम्प्लॉयज हैं जुड़े रहें। क्योंकि अब नौकरी की इतनी मारामारी है कि जहां पर भी लोगों को पता चलेगा नौकरी है, लोग वहां पर नौकरी करने चले जाएंगे। डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. yes, sir. आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिलोसॉफी क्या है? तो हमने ये देखा कि अभी आप एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वहां पे आपको बताया जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए 5 M's बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्या क्या है? मैन मटेरियल मैन, मटेरियल, मशीन, Material, machine, method. मेथड और मनी। ठीक है, इसमें से 4 चीजें बहुत इजीली मैनेज होती है। पैसा अवेलेबल है, लोन्स आज की डेट में, इफ यू हैव अ वैलिड प्रोजेक्ट यू कैन गेट अ इजी लोन। देयर आर फाइनेंसर्स, देयर आर वेंचर कैपिटलिस्ट हु आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन योर आइडियाज इफ यू हैव अ गुड आइडिया। ओके, मशीन, नाउ यू कैन प्रोक्योर योर मशीन्स ग्लोबली। जो बेस्ट होगा, जो स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो आप, अगर आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी है तो आपके डोर स्टेप पे आकर के वो मशीनरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मेथड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स की अवेलेबिलिटी आज की डेट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आपको अगर किसी से मेथड हायर करना है, देयर आर कंसल्टेंसीज जो कि आपको पूरे बिजनेस के प्रोसेस को स्टार्ट करके रन करके आपको दे देगा, आपको सिर्फ उसको चलाना है। ठीक है, लेकिन जो चीज मैनेज नहीं होती दैट इज मैन बेटा। सर बट मटेरियल भी तो, जैसे अपन देखा जाए तो बहुत, अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो मिनरल्स हो गया, जैसे कोल। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। सी, देयर वाज अ टाइम when Bhilai steel plant was entirely dependent on 2-3 mines, हिर्री माइंस था, राजरा माइंस था, नंदनी माइंस था। ठीक है, और इसके बाद अगर उसको कुछ खरीदना होता था, ठीक है, तो वो क्या करता था कि आसपास में जो माइंस है उन पे, उनसे संपर्क करता था और वो जिस रेट पे सामान बेचते थे उस पे खरीदता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे हम डिपेंडेंट थे कोल की क्वालिटी के लिए, कि कोल अगर ऑस्ट्रेलिया भेजेगा तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। मशीनरीज के लिए हम डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर, क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन जो है भिलाई स्टील प्लांट का वो पूरा रशियन इंस्टॉलेशन था। 2005 के बाद, आई थिंक 5-6 के बाद, भिलाई स्टील प्लांट ने अपने सारे प्रोक्योरमेंट को ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, और जो सप्लायर्स उसके पास बहुत कम थे, ठीक है, आज जब भिलाई स्टील प्लांट किसी सप्लाई के लिए अपलोड करता है कि लोग टेंडर फ्लोट कर सकते हैं, भिलाई स्टील प्लांट को इसी चीज की जरूरत है, तो ग्लोबली लोग कोट करते हैं। अब भिलाई स्टील प्लांट 2-4 सप्लायर, वेंडर्स या 2-4 देशों पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आई वर्क विद अ कंपनी ताजप्रोम एक्सपोर्ट वेयर the basic work which I was doing was in 2004, I think, to take blueprint of machineries, to take blueprint of the designs and send it through courier to the Moscow head office. मॉस्को में ये ताजप्रोम एक्सपोर्ट का ऑफिस था, जहां पर नंदनी रोड में बड़े फोटोकॉपी निकलते थे। तो उस बड़े फोटोकॉपी को करके, और ये मतलब एक बड़ा पेपर जो है 4 फोल्ड करके मैं भेजता था मॉस्को, and Blue Dart courier was charging round about 1800 rupees for a single print मॉस्को तक सही हालत में भेजने के लिए। आज की डेट में क्या किसी डिजाइन को भेजने के लिए इतना खर्च लगेगा? नो सर। Fraction of seconds में using computers we can design good also and we can send the entire specification, छोटे से छोटा specification, that too in a desired language which you want। आप इंग्लिश में डाल दीजिए, जिसको जिस लैंग्वेज में पढ़ना होगा लैंग्वेज चेंज करता जाएगा और स्पेसिफिकेशन पढ़ लेगा। तो जो सप्लायर्स का और मटेरियल्स का जो इशू था, अब ऑर्गेनाइजेशन के सामने इतना बड़ा नहीं रहा। नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग बेटर सप्लायर्स, मोर नंबर ऑफ सप्लायर्स, और कहीं ना कहीं पर जो सप्लाई चेन है वो पहले के मुकाबले आज काफी इजी हो गई है। ठीक है, सारी चीजें बेहतर हो गई। अब जैसे जैसे इंसानी दिमाग एक एक चीज पर लगता गया, चाहे प्रोडक्शन का प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे जो आपका कस्टमर का सर्विस हो, हर चीज को अपग्रेड किया गया। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह जहां पर आकर के हर चीज अटक जाती है, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि ह्यूमन और मशीन के बीच का डिफरेंस ये है, मैंने कल आपको बताया ना कि जब आप आंख बंद करते हो घड़ी की तरफ देख करके, उसमें रात 12 बजे होता है, सुबह आप अपनी नींद पूरी करके उठते हो, देखते हो 8 बजा हुआ है। घड़ी अपना काम कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर 365 दिन कर सकता है। बट ह्यूमन बीइंग जो है, उसके साथ दिक्कत ये है कि इफ द वर्क इज मोनोटोनस, वो अपना जील, अपना एंथुसियाज्म जो है कहीं पर खो देता है।
ठीक है। और जैसे जैसे उसका जील, उसका इंथुजियाज्म कम होता जाता है, कहीं ना कहीं पर देयर इज अ डिफरेंस इन द आउटपुट which the organization gets. Now, if a organization is having 50,000 employees और कहीं ना कहीं इन एम्प्लॉइज के जील में कमी आ रही है, अगर उनके आउटपुट में कमी आ रही है, तो अगर उसका मल्टीप्लिकेशन हम निकालेंगे तो ओवरऑल आउटपुट में कमी आएगी ना? Yes, sir. हमें इस पर्टिकुलर चीज को सोचते हुए ऑर्गेनाइजेशन और उसमें वर्क करने वाले इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में सोचना, पढ़ना और साइंटिफिकली उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होगा. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर has been added to your curriculum because you all are budding managers. आप कल की डेट में एक लीडरशिप के रोल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे. जब तक आपका दिमाग, आप अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, अपने डीड्स को नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, क्या आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना पाओगे जिससे लोग आपकी बात सुन करके मोटिवेट हो? नो सर. तो सबसे पहले हम खुद को समझेंगे. वी विल लर्न अबाउट द इंडिविजुअल लेवल psychological aspects which affect individual, then we will go to group and then we will move towards the system. आपको ये समझ में आया? मैं पहली क्लास में इस चीज को इसीलिए नहीं बताया था बेटा, बिकॉज जब तक हमको किसी चीज के बारे में पता नहीं, उसका बैकग्राउंड भी समझ में नहीं आएगा. पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जरूरत क्यों है, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग ग्लोबल. ठीक है, अब हम ग्लोबली मूव करने लगे हैं एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी. And managing diversity is a very big challenge. ठीक है, डाइवर्सिटी को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हमको दिखने लगेंगे. ठीक है, सो द 4 challenges which is helped by this subject to manage is globalization, diversity, ethics and technology. अच्छा, ethics जो है क्या सबके लिए सेम होता है? No sir. No, sir. सर बट बिजनेस एथिक्स अगर होगा तो बिजनेस के ऑटोमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस में हो सकता है. हाँ, सी यही सबसे बड़ा दिक्कत है बेटा कि इथिक्स एक ऐसा शब्द है जो इंडिविजुअल के हिसाब से तैयार होता है ना? भाई चीटिंग करना सही है कि गलत है? गलत है सर. गलत है. और अपना पेपर ना बन रहा हो तो, और अपना पेपर तो सही है. ना बन रहा हो तो सही है ना? सही है सर. तो सही है. सही है ना? ये सबसे बड़ा दिक्कत है एथिक्स के साथ कि जब हम प्रैक्टिस में होते हैं, we don't think of ethics. ठीक है, we don't think of the statements which we have learned. We don't think of the value system which has been inculcated by our parents, by the society. But yes, the moment other person is doing some thing wrong, वो हमारे आंख में तुरंत खटकने लगता है. ठीक है, तो एक बिजनेस एथिक्स जो आपने बोला, बहुत अच्छा शब्द बोला कि वो कौन से कोड ऑफ एथिक्स हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए, जिसपे सब एग्री हो जाए. ठीक है, दिस हैज टू बी आइडेंटिफाइड एंड दिस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग होंगे जो वेजिटेरियन होंगे और कई ऐसे लोग होंगे जो प्योर वेजिटेरियन होंगे. ऐसा है ना? यस सर. वेजिटेरियन बोलते हैं अपने आप को, तो कोई बोलता है प्योर वेजिटेरियन. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि इथिक्स जो है वो कितना डिफर करता है ना? और लास्ट चीज जो है दैट इज अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. किसी भी टेक्नोलॉजी को आदमी जो है बहुत आसानी से अडॉप्ट नहीं करना चाहता. ठीक है, इट टेक्स टाइम. ठीक है, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कराने के लिए बहुत मोटिवेशन की जरूरत है. जब तक आपको ये मोटिवेशन नहीं होगा, ठीक है, तब तक किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होगा. आपने कभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर के शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर पे चढ़ा है? यस सर. ये एस्केलेटर बना क्यों होता है? ताकि उनको तकलीफ ना हो इतना ज्यादा. सीढ़ी चढ़ना ना पड़े,
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये एस्केलेटर जो है आसानी से उनको लेकर के चला जाए। लेकिन जो इस एस्केलेटर से वेल वर्स नहीं है, जब तक आप उनका हाथ पकड़ करके पहली बार उनको कंफर्टेबली एस्केलेटर पे चढ़ा करके ऊपर तक नहीं ले जाते, तब तक देयर इज अ रिजिडिटी कि मैं नहीं चढ़ता, हो सकता है मैं गिर जाऊं। इज इट? यस sir. कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, इंसान आपकी उम्र में तो फिर भी एक बार ट्रायल एंड एरर पे जा सकता है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है वो उतना ही मुश्किल होता जाता है। और हमें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही होती है, हमें रोज नई टेक्नोलॉजी को सीखना समझना जरूरी होता है। तो लोगों के बिहेवियर को भी इतना मोटिवेटेड रखना होता है कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य होगा, वी हैव टू गो थ्रू विद दैट टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू लर्न इट। ठीक है सर, because they are very much fear of not adopting new technology because they are familiar with the old technology. That's yes, two things are there. First one is fear, the second one is rigidity. पहला जो पार्ट है दैट इज फियर, और दूसरा रिजिडिटी है। जब मुझे एक चीज अच्छे से आता है तो मैं दूसरा क्यों सीखूं? ठीक है, ये मानना लोग नहीं चाहते कि एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, जब जो आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का एब्सोल्यूशन हो जाएगा, उसका कोई मार्केट बचेगा ही नहीं। ठीक है, ये लोगों को कन्विंस कराना भी बहुत बड़ा काम है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें तो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। इन सब्जेक्ट्स का जो ह्यूमन बिहेवियर पे इम्पैक्ट है उनको उठा उठा करके आपके सिलेबस में रखा गया है, ताकि आपको इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो बिहेवियर है उस चीज की थोड़ी सी समझ हो। ठीक है, रिएक्शन टू चेंज इज समथिंग विच इज not very easy to accept. Okay, basically human behavior is rigid and reactive. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है? रिजिड और रिएक्टिव होता है। वी डोंट लाइक चेंज। ठीक है, आज आप घर में बैठे हैं, शाम को 6 बजे चाय पीते पीते आपके पेरेंट्स बोल दे बेटा कल सुबह 4:30 आपको उठ जाना है, ठीक है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। 4:30 कोई उठने का समय है? आपको मोटिवेट भी करेंगे, हमारे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठते थे और ऐसा वैसा, समझ में आना, दिमाग काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर 4 बजे 5 बजे उठने के फायदों के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए, आपको कन्विंस कर दिया जाए कि अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो कुछ भी कर पाना आपके लिए असंभव नहीं है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो आपके सोशल डीड्स हो, तो शायद आप जो रिजिडिटी के साथ रेस्पॉन्ड कर रहे थे 4-5 बजे उठने के बारे में, वो रिजिडिटी आप में कम हो और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि सुबह उठने से क्या फायदा होता है। एटलीस्ट हम एक कदम बढ़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको विजिबल है? यस सर। यस सर। तो दो पिक्चर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रिजिड और रिएक्टिव जो है दैट इज अ क्लोज डोर। ठीक है, जो किसी कम्युनिकेशन को अपने कान के अंदर आने नहीं देता, किसी नई चीज को प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, वेयर एज ओपन एंड रेस्पॉन्सिव जो पर्सनालिटी है उसका हर जगह पर स्वागत है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी टर्बुलेंसी आए, कुछ भी चेंजेस हो, अगर आप ओपन हैं, अगर आप रेस्पॉन्सिव हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानते हैं, तो कोई भी चेंजेस जो है वो आपको आपके उद्देश्य से नहीं भटका सकती। ठीक है, सो सबसे पहला चीज जो आप इस सब्जेक्ट से खुद सीखे, दैट इज इफ एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग टू यू, बी ओपन एंड रेस्पॉन्सिव। ठीक है, ओपन का मतलब सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि किस कंटेक्स्ट में आपसे ये कम्युनिकेशन किया जा रहा है, और रेस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि उस स्टेटमेंट पर आपको रेस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना है, ये लॉजिकली सोचने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के यू स्टार्ट ट्राइंग
और यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दोज थिंग्स जो आपको भविष्य में आराम से प्लेस कर सकती है, ठीक है, बिना तकलीफ के, जिससे आप प्लेस हो जाओ। उन चीजों को प्रैक्टिस करना, ठीक है। और प्लेस होने का मतलब नौकरी में प्लेस होने की बात नहीं कर रहा बेटा मैं। प्लेस होने का मतलब आपका प्लेसमेंट अपने परिवार में भी एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तौर पे, आपकी सोसाइटी में भी एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तौर पर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस कम्युनिटी में भी एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तौर पर, आप जॉब करते हैं तो उस जॉब में भी एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व की तरह के तौर पर होना चाहिए। आपको देख करके अगर लोगों को मोटिवेशन मिलता है तो आप मान करके चलिए कि आपका जो जीना है दैट इज वर्थ लिविंग, ठीक है। सिर्फ अर्न करने के लिए जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है, अपने डीड्स को फुलफिल करने के लिए सिर्फ जीने का कोई भी मतलब नहीं है। वन शुड हैव अ एम्बिशन ऑल्सो, ठीक है। और उस एम्बिशन को रेस्पॉन्सिव रह करके सोसाइटी की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, ठीक है, अपने नेशन की तरफ, अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की तरफ रेस्पॉन्सिव रह करके आपको पूरा करना है, बिकॉज यू गेट ओनली वन लाइफ। एग्रीड? Yes, sir. Yes, हम sir. सबको Yes, sir. चांस मिलता है जीने का, ठीक है। तो उसमें जो बेस्ट है अगर हम देने की कोशिश करें हर उस जगह पर जहां पर हम एसोसिएटेड हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज समथिंग विच शुड बी द आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का आउटकम ही ऐसा होना चाहिए कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को आप चेंज करना शुरू कर दें, whether it is your home, whether it is your friend circle, whether it is your business or something else. Okay, now yeah, this we have discussed science, real world, and you see basic जो OB model है उसमें there are 3 levels at which we study, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है। Why we study individual level? To know Sir, for the individual improvement of behavior. individual. Sir, to know ourselves, how, where we stand. Sir, to become कल independent. हमने जब कल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन देखा था बेटा, तो उसमें लिखा था एन ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्शन ऑफ 2 or more individuals. Yes, ठीक sir. है? Individuals तो are basic जो requirements बेसिक of बिल्डिंग organization. ब्लॉक है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है? इंडिविजुअल। Individual. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? इंडिविजुअल। Individual. और क्लास 4 लेवल के एम्प्लॉय से लेकर के और उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ तक हर इंडिविजुअल अपने अपने कंट्रीब्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन में देता है। इज इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबसे नीचे लेवल पे एम्प्लॉय है, वहां से लेकर के जो एकदम टॉप लेवल पर बैठा एम्प्लॉय है, एवरीवन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स हाउ अ ऑर्गेनाइजेशन रन्स, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो चीजें पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दैट इज इंडिविजुअल लेवल पे हमारा जो बिहेवियर है उस पे किन किन चीजों का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। आफ्टर इंडिविजुअल लेवल वी विल मूव टू द ग्रुप लेवल। कौन सा ऐसा समय आता है जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल करके और एक ग्रुप के साथ एसोसिएट होते हैं, ग्रुप नॉर्म्स को डेवलप करते हैं, और कौन सा ऐसा समय आता है जब बहुत सारे ग्रुप्स कलेक्टिवली एक सुर में एक साथ जुड़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जो सिस्टम लेवल है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आज भारत में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. बहुत सारे अलग अलग राज्य में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारी Yes, sir. अलग Yes, अलग sir. आइडियोलॉजीज है ना। कहीं कम्युनिस्ट है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर बीजेपी है, कहीं पर और कोई जो लेफ्ट है UTs उसका वगैरह भी है। जोर है। लेकिन द मोमेंट वी टॉक अबाउट कंट्रीज ग्रोथ, द मोमेंट वी टॉक अबाउट कंट्रीज डेवलपमेंट, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एक स्वर में उस ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करते हैं। दैट मीन्स हम इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल से हमने ग्रुप बनाया और सारे ग्रुप मिलकर के कहीं ना कहीं पर उस सिस्टम को जिसके हम पार्ट हैं, ठीक है, उस सिस्टम के बेटरमेंट को भी हम
चाहते हैं। तो जब हमारा ग्रुप लेवल कंप्लीट हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे सिस्टम लेवल। ठीक है, नाउ we will study about how we proceed for research in this particular domain of organizational behavior. We have to understand what are the dependent variables. जब हम employees की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर एक organization जो है डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग जो है डिपेंड करता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? निर्भर रहना। डिपेंड ऑन रिसोर्सेज और इसको बहुत आसानी से समझिए बेटा कि ए रिस्पॉन्स दैट इज अफेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। किस तरीके से मैं इस क्लास को यहां पर ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप 60 लोग एक क्लास में हैं, मैं इस क्लास को, इस टॉपिक को यहां से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, बट आप जिस मूड पर इसको रिसीव कर रहे हैं उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं क्या? नो सर। No, sir. मैं अपनी डायरी में लिख दूंगा कि मेरा ये टॉपिक जो है वो आज की क्लास में कवर हो गया। ठीक है, क्या आपने उतनी सारी चीजों को ग्रैब कर ली जो मैं यहां से बोला? नो सर। नहीं ना। तो आपका जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किस पर? आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पर। एक क्लास का ग्रोथ किस पर डिपेंडेंट हो गया? आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पर। सारे लोग अगर अच्छे से सुन लें, सारे लोग अगर अच्छे से समझ लें, ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग अगर, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। किसी भी बिहेवियर साइंस की स्टडी में हम इन चीजों को सबसे पहला पैरामीटर मानते हैं सेग्रीगेशन का, जिस पर ये रिसर्च होता है। देखिए क्या क्या चीजें डिपेंडेंट होती हैं। प्रोडक्टिविटी, अ परफॉर्मेंस मेजर इंक्लूड्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट होती है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे। इफेक्टिवनेस क्या होता है? कोई एग्जांपल? व्हाट इज इफेक्टिवनेस? सर वर्क को टाइम में कंप्लीट करना। वर्क को कंप्लीट करना इज इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफ देयर इज अकम्प्लिशमेंट दैट मींस द वर्क वाज इफेक्टिव। अगर अकम्प्लिश हो गया तो इफेक्टिव है। ठीक है, व्हाट इज एफिशिएंसी? सर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, किसी वेस्ट ना करना। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस काम को पूरा किया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई दो लोगों का नाम बताओ इस क्लास में से। मनीष, चलो एक हो गया। और एक कोई? अनीता रेड्डी। हाँ, अनीता। ठीक है, सी मान लीजिए आप दोनों जो हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं और आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि नाउ वी आर इन अ नीड ऑफ मनी, हमें 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। आप जितने बैंकर्स हैं उनके साथ मीटिंग करिए और हमारे लिए एक लोन अरेंज करके दीजिए। मनीष भी चले जाता है, अनीता भी चले जाती हैं, बहुत सारे बैंकर से ये लोग मिलते हैं और 2 दिन बाद एक रिपोर्ट जमा करते हैं जहां पर दोनों एग्री हो जाते हैं कि लोन जो है ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ रुपए का मिल सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे चेक करेंगे? इफेक्टिवनेस तो हो गया, दोनों लोगों के लिए भेजा था। अपने टाइम पर लोन की जो बात करनी थी कर करके ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिपोर्ट जमा कर दिया। जब हम एफिशिएंसी चेक करने जाएंगे तो वी विल चेक कि अनीता ने कितने परसेंट पे ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिलाने की बात तय की है और मनीष ने कितने परसेंट पे लोन। जिसने कम परसेंटेज पे, कम इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पे ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिलाना तय किया होगा वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है एफिशिएंसी क्या है? Yes, sir. तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, आपने हेयर और टॉर्टाइस की स्टोरी सुनी है ना? यस सर। अचीवमेंट तो दोनों का है। जब आप फिनिश लाइन पहुंच जा रहे हैं मतलब दोनों ने अचीव किया, लेकिन
किस पेस पे अचीव किया, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, तो आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस भी हाई चाहिए और एफिशिएंसी भी हाई चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? एकदम ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? नो सर। समझ में आ रहा है सर। नो सर। कहीं पे कुछ डाउट लगता है प्लीज पूछेंगे, ठीक है? वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि इसे बहुत इजी वे में आपको समझाया जा सके। नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल्स में दो चीजें और है, एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म जो है फिर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है? सानिका, आर यू प्रेजेंट? और क्या क्या नाम है देखता हूँ अटेंडेंस लिस्ट। अभी आप लोगों के नाम मुझे याद नहीं है। मनीष हो गया, आदित्य Present, sir. प्रेजेंट। व्हाई एब्सेंटिज्म इज डिपेंडेंट वेरिएबल? Don't Any know, sir. example? Non-presence of an employee can harm organization. Muzaff, may I- are you present? Yes, sir. Why absenteeism is a dependent variable? Yes, sir. Sir, may I? Okay. अच्छा, हाँ प्लीज। तो कहना है सर इफ आज हम क्लास में absent रहते तो मुझे किसी और से पूछना पड़ता कि आज क्लास में क्या हुआ, तो मैं डिपेंडेंट। नहीं बेटा, आप कौन बोल रहे हैं? सर निहारिका। निहारिका, ओके निहारिका, वी हैव टू चेंज द वे वी आर थिंकिंग। देखिए, एब्सेंटिज्म जो है ये एक खुद से लिया हुआ डिसीजन है, ठीक है, किसी जगह पर प्रेजेंट नहीं होने का। ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तैयार करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट रहें और अपने काम को करें, ठीक है। लेकिन बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो कुछ ऐसी छूट दी जाती है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में आप छुट्टी ले सकते हैं। सीएल के प्रावधान होते हैं, मेडिकल के प्रावधान होते हैं। नो, जब आप ये सीएल या मेडिकल ले रहे होते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 20 सीएल हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। वो रीजन सही भी हो सकता है और वो रीजन रॉन्ग भी हो सकता है। रॉन्ग भी हो सकता है। मतलब ये पूरी तरीके से एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। अगर वो चाहे तो एब्सेंट रहे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता। उसकी छुट्टियां खत्म हो जाएगी, फिर भी एब्सेंट है तो आप क्या कर सकते हो? तनख्वाह काट सकते हो। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते ना बेटा, है ना? आप उसकी सैलरी काट दोगे, दैट इज द मैक्सिमम विच यू कैन डू। यू कैन गिव हिम डिमोशन, यू कैन गिव हिम सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, लेकिन आप जबरदस्ती उसे घर से उठा करके आप उसके वर्क प्लेस पे बिठा नहीं सकते। तो एब्सेंटिज्म जो है, But sir, we can give him rewards if they. Sir, we can give them rewards. यस, हम इसीलिए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि इन परेशानियों को दूर कैसे किया जाएगा। Yes, sir. by motivating them. यस, सर नीड्स को फुलफिल करने से उन लोग एब्सेंट होने लेकिन होंगे। बेटा सी ये सारी चीजें आप बीइंग अ एचआर मैनेजर और बीइंग अ टीम लीडर, आपका ऑर्गेनाइजेशन जितना अलाउ करेगा उतना ही कर सकते हो ना। यस सर। सर मान लीजिए आपने किसी को 20,000 रुपए की नौकरी पे रखा, उसकी जरूरत 50,000 रुपए की है, क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा उसकी जरूरत को फुलफिल कर दो? नो सर। नो सर। नहीं कर So we can only give him rewards, like little bit of rewards. sir Yes, schemes such as sir जो scheme मोटिवेशन जो है वो ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है, बट But sir, फाइनेंशियली motivation वी time ऑल आर period of रेस्ट्रिक्टेड एट सम प्लेस। sir sometimes we can give them the medical benefits and Everything. No. See, for example, you are giving everything. House is free, medical facility is there which is free, ठीक है, you are giving facilities for student for children's education, you are giving money, you have opened school also in your campus, and then also if an employee is not coming, what can you do?
Nothing. So we can do nothing. Nothing. So the final conclusion is absenteeism is a dependent variable. Absenteeism जो है वो एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है. ठीक है, ये फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा जहां पर सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम पड़ा है, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो दो पेड़ के बीच में एक झूला बांध करके आराम कर रहा है. आप कुछ कर सकते हैं? No, sir. No, sir. मोटिवेशन ही दे सकते हैं. आप बहुत ज्यादा पनिश करके कुछ नहीं कर सकेंगे. ठीक है, और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम जो है रहता ही है, क्योंकि इंसान का मूड है. कभी ऐसा होता है ना, उठ करके आपको लग रहा है कि यार मैं आज नहीं अटेंड करना चाहता कॉलेज, आज मैं कुछ नहीं करना चाहता, आराम करना चाहता हूँ. ये लगने को आप नहीं रोक सकते. ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है उस एम्प्लॉय पे जो आपके पास वर्क कर रहा है. टर्नओवर, voluntary withdrawal of a voluntary or involuntary withdrawal of a particular employee from the organization. किसी को बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, उसने नौकरी छोड़ दिया, क्या आप उसको बोल सकते हो कि आप यहीं पे नौकरी करते रहेंगे? No, sir. No, sir. नहीं बोल सकते ना बेटा. टर्नओवर भी किस पर डिपेंडेंट है? Employee. भारत में ऐसे लाखों लड़के हैं जो आईएएस की तैयारी करते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं नए नए जो छोड़ करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले रहे हैं. वॉलंटरी है ना. मेरा मन कर रहा है मैं आईएएस की नौकरी छोड़ करके पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं. आप मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो टर्नओवर जो है ये फिर से डिपेंडेंट वेरिएबल है. किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एम्प्लॉय के ऊपर. आप सारे नियम कानून बना लो कि आप छोड़ोगे तो आपको 1 साल का पैसा जमा करना पड़ेगा, है ना, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा कर, ठीक है, सब कर दूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा. आप कुछ कर पाओगे? No, sir. सो कंट्रोलिंग ह्यूमन, अब समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना इतना इजी टास्क नहीं है. ओके. नहीं है, ओके, sir. विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, है ना. लेट मी टेक अटेंडेंस, क्योंकि दूसरे क्लास का समय हो गया. बेटा बताते रहना है कि सर टाइम हो रहा है. 5 मिनट पहले तो बता ही देना है. ठीक है, आपको अपना सीक्वेंस पता चल गया? सीरियल नंबर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 से ले लो अटेंडेंस. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा. रोल नंबर 1, Present, sir. 2, 3, sir. Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present. 32, 33, 33, 34, 35, hello, 35, 36, Present, sir. 37, 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Sir, 40 present. 40 present, sir. 41, 41 present, sir. Present, sir. 42, 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 47, 48, 48, Present, sir. Present, sir. 49, 49, Present, sir. Present, sir. 50, Present, sir. Present, sir. 50,
Present, 51, Present, 51, Present, 52, Present, sir. 52, 53, 53, 54, 54, Present, sir. 55, Present, sir. Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, 56, sir. Present, sir. 57, Present, 57, Present, 58, Present, 58, 59, 59, 60, Dolly Gupta, 60, Dolly Gupta. चलिए, that's all for today's class. roll number sir, roll number 2 present. Sir, roll number 2 present. Roll number 37. Roll number 37. Roll number Sir, Prajosh, I'm also present. Sir, Prajosh, I'm also present. Sir, roll number 15. Sir, roll number 15. Okay, okay. Sir, roll number 37. Sir, roll number Yeah, I 37. did. Yeah, I did. Then have a nice day. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. 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 Thank you, sir. हाँ बेटा बोलिए. Thank you, sir. सर ऊर्जा सेठी रोल नंबर 56 प्रेजेंट लगा दिए. Yes, yes, yes. कर दिया बेटा. थैंक यू सर. ओके बेटा, चलिए. 43 also. 43. चलिए आप अब दूसरे क्लास को ज्वाइन करिए बेटा, टाइम हो रहा है ना? Yes, sir. Now it's 11:59. Join the next class.